guys, I am Dr. Soumya and today's topic for discussion is cementum. Cementum क्या है? Cementum is a part of periodontium. तो इस पे लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज़ वाई इसको हम इन हेडिंग्स में पढ़ेंगे, वेयर इन इफ द आंसर इज अ लॉन्ग नोट और अ शॉर्ट नोट डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स इट कैरीज, इट कैन बी रिटन इन फॉलोइंग हेडिंग्स. First, we'll be talking about introduction. So, cementum being a part of periodontium, we need to know what is a normal periodontium or what is the main function of a normal periodontium. So, normal periodontium provides support which is necessary to maintain teeth in function. अब periodontium के parts क्या हैं? There are two main parts. One is a soft tissue part, one is the hard tissue part. Soft tissue में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, that is gingiva and periodontal ligament. एंड हार्ड टिश्यू में आता है सीमेंटम एंड एल्वेलर बोन. क्योंकि आज का डिस्कशन इज मेनली ऑन सीमेंटम, हम सीमेंटम पे एम्फेसाइज करेंगे. सो द नेक्स्ट स्लाइड आई विल शो यू कि सीमेंटम इज विच पार्ट ऑफ द टूथ और विच पार्ट ऑफ द पेरिडोन्टियम. इस वीडियो में हम देख रहे हैं इस पेरिडोन्टियम के चार पार्ट्स हैं, जिसमें सीमेंटम इज अ पार्ट जो कि टूथ को लाइन कर रहा है, टूथ की रूट को लाइन कर रहा है. दिस येलो पार्ट सीमेंटम है. तब सीमेंटम की बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं. दीज आर द थ्री डेफिनेशंस विच फॉर्म द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर आंसर इन योर एग्जाम. सो एनी ऑफ द डेफिनेशन कैन बी रिटन. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ पेरियो पीजी, यू विल राइट Carenzas definition. If you are studying in BDS and you are in first year, you will write Auburn's definition. And again, if you are a perio PG, you can quote the definition given by 10K. So according to Carenza, cementum is the classified avascular mesenchymal tissue that forms the outer covering of the anatomic root. Then we have, according to Auburn's, it says cementum is the mineralized dental tissue covering the anatomic roots of human teeth. Then according to 10K, cementum is a hard avascular connective tissue that covers the roots of the teeth. Now cementum is also known as bone of attachment, क्योंकि जो भी पार्ट है ऑफ द पेरिडोन्टियम जो टूथ से अटैच हो रहा है वो किस में जाके अटैच हो रहा है? इनामल पे तो कोई अटैचमेंट नहीं है, हमारे पास जितनी भी अटैचमेंट है वो सीमेंटम में है. दैट इज़ वाई इसको हम बोन ऑफ अटैचमेंट बोलते हैं. नेक्स्ट, we need to know what is the history of cementum. This is a part or a heading of the answer which can be omitted while we are writing an answer in the exam. However, it is very important if you are preparing for any kind of competitive exams. Competitive exams में this will be emphasized, but it can be omitted और आप इसको skip कर सकते हो if you are writing an answer in your exams. So cementum एक word है that is derived from Latin word that is cementum, which means a quarried stone. फर्स्ट किसने डिस्क्राइब किया था? टू pupils ऑफ Purkinje in 1835. Later it was described by Denton GB 1939 in his article that is the discovery of cementum. Also in 1835 Frankel and Rajko first examined cementum on the roots of the human teeth. Also ये कहा जाता है या it is considered that it begins at the cervical portion of the tooth at the cemento-enamel junction and continues to the apex. So cementum का extent हम बता रहे हैं इसमें. cementum कहाँ से कहाँ तक जाता है? टूथ के CEJ से लेकर apex तक, that is apical portion. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है सीमेंटम के बारे में? कि इसमें शार्पीज फाइबर का अटैचमेंट होता है. दैट मीन्स जब हमारा टूथ बोन में एम्बेड होता है तो कुछ फाइबर्स होते हैं जिनको हम पेरिडोंटल लिगामेंट बोलते हैं या पेरिडोंटल लिगामेंट फाइबर्स बोलते हैं. तो जो फाइबर्स सीमेंटम के अंदर एम्बेडेड होते हैं उन फाइबर्स को हम शार्पीज फाइबर बोलते हैं. तो सीमेंटम अटैचमेंट प्रोवाइड करता है टू शार्पीज फाइबर. और जैसे कि हमने डेफिनेशन में पीछे पढ़ा था, दिस इज एवास्कुलर एंड इट इज़ नॉन इनर्वेटेड, मतलब इसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, इसमें कोई नर्व सप्लाई नहीं है. अब आगे चलते हैं. नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीमेंटम. तो सीमेंटम जो होता है पूरी लाइफ बनता रहता है. जैसे इनामल होता है, डेंटिन होता है, ये एक बार बन गए फिर दोबारा नहीं बनते, इनमें रीजनरेशन की पावर नहीं होती है. बट सीमेंटम इज़ ऑलवेज फॉर्म थ्रू आउट दी लाइफ, मतलब सीमेंटम का हमेशा डिपोजिशन फॉर्मेशन चलता रहता है. कंपेयर करें अगर डेंटिन से तो इट इज़ सॉफ्टर एज कम्पेयर टू डेंटिन. इसका कलर इज़ लाइट येलो इन कलर, इसके अंदर लस्टर नहीं होता एंड हैज़ a dark hue as compared to that of enamel. It is resistant to resorption. Now अब इसका रेजिस्टेंस क्यों है? ये रिजॉर्ब क्यों नहीं होता है?
इसका रीज़न अभी तक प्रिसाइजली डिस्क्राइब नहीं है, बट इट मे बी रिलेटेड टू डिफरेंस बिटवीन द फिजियोकेमिकल एंड द बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोन एंड सीमेंटम। सीमेंटम एंड बोन दोनों ही हार्ड टिश्यूज़ हैं, बट इनकी फिजियोलॉजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस होता है, इसलिए इसमें रिजॉर्प्शन हमें यूजुअली देखने को नहीं मिलता है। दैट इज़ वाई इट डज नॉट गेट अंडरगोज वियर एंड टियर। ऑल्सो अपाइकल फोरामेन इज फॉर्म बाय द सीमेंटम। अब अपाइकल फोरामेन वो होता है जहाँ पे एंड इट इज एट द अपेक्स ऑफ द टूथ, जहाँ से जितनी भी इनोवेशन ब्लड सप्लाई आ रही है टू द पल्प एज वेल एज टू द टूथ, तो सीमेंट अपाइकल फोरामेन इज फॉर्म बाय सीमेंटम। नाउ अब आपको इस पर दिख रहा होगा मैंने कुछ ऑथर्स के नाम हाईलाइट किए। सो दीज ऑथर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हु आर परसुइंग PG in periodontics. BDA students can skip these authors. Next we'll be talking about the other important property of cementum, that is cementum thickness. जो cementum की thickness होती है सबसे ज़्यादा coronal half में होती है, that is 16 to 60 micrometer, जो equivalent होगी to the thickness of hair. Thinnest होता है in the cemento-enamel junction, that is 20 to 50 micrometers. Average thickness की range is 95 micrometers at the age of 20 years and 215 micrometers at the age of 60 years. Greatest thickness हमें कहाँ मिलेगी? in the apical third and the furcation areas में, जो कि range होती है less than equal to 150 to 200 micrometers. Again it is thickest at the apex, that is 150 to 200 micrometer, and it is more on distal surface than on the mesial surface due to mesial tip. अब इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है, जैसे कि हमें पता है हमारे दांतों में ऑलवेज आर टीथ आर इन फिजियोलॉजिकल मूवमेंट, दैट इज देयर इज स्लाइट मूवमेंट प्रेजेंट इन आर टीथ एवरी टाइम। तो हमारे जो टीथ होते हैं वो इट विल ऑलवेज दे हैव अ टेंडेंसी टू मूव इन द मीजियल डायरेक्शन, दैट इज दे विल ऑलवेज ड्रिफ्ट टूवर्ड्स मीजियल, हमेशा मीजियल की तरफ बेंड करेंगे, डिस्टल की तरफ नहीं जाएंगे। जब हमेशा मूवमेंट मीजियल की तरफ हो रही है तो डिपोजिशन विल बी मोर ऑन डिस्टल सरफेस एज कम्पेयर टू द मीजियल सरफेस, क्योंकि वहाँ पे जगह ही नहीं है टू गेट डिपॉजिटेड, देयर इज ऑलवेज स्पेस ऑन द डिस्टल एस्पेक्ट, देयरफॉर डिस्टल एस्पेक्ट पे ज़्यादा डिपोजिशन होता है, इसलिए वहाँ पे थिकनेस ज़्यादा होती है। नेक्स्ट वी हैव इज़ द सीमेंटम परमिएबिलिटी। नाउ परमिएबिलिटी का क्या मतलब है कि उसके अंदर एक्सचेंज हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है किसी चीज़ का, सर्टेन सब्सटेंसेस, सर्टेन फ्लूइड्स और एनीथिंग एल्स। सो द परमिएबिलिटी डिक्रीजेज विद द एज, इट इज़ लेस परमिएबल दैन डेंटिन एंड इट इज़ मोर permeable than dentine. This is a contradictory statement. According to 10 kids it is less permeable, but according to periodontics BMLE it is more permeable than dentine. Again these authors are important for PG purpose and not for UG students. So we can see that as the age increases permeability is decreasing, although the permeability of cementum is highly controversial. Next we move on to the functions of cementum. The चार मेन फंक्शंस हैं सीमेंटम की, दैट इज़ एंकरेज, अडेप्टेशन, रिपेयर, हाइपरसेंसिटिविटी, प्रिवेंशन। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि एंकरेज कैसे हर चीज़ आके सीमेंटम में अटैच हो रही है तो वो टूथ को होल्ड करके रखती है। एंकरेज का मतलब यही है कि एक तो फर्निश करता है अटैचमेंट ऑफ शार्पीज फाइबर जो कि बाइंड करेगा टूथ को टू दी एल्वुलर बोन। एज मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, बहुत सारे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बोन से निकलते हैं टूथ में जाते हैं, तो टूथ में वो कहाँ जा रहे हैं? वो सीमेंटम के अंदर जा रहे हैं, दैट इज़ वाई वो उसको एंकर करके रखेगा, पकड़ के रखेगा। नेक्स्ट वी हैव इज अडेप्टेशन। डिपोजिशन ऑफ सीमेंटम इन एन अपाइकल एरिया कैन कॉम्पनसेट फॉर लॉस ऑफ टूथ सब्सटेंस फ्रॉम ऑक्लूजल वियर। इसका क्या मतलब है? जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमने देखा कि हमारा इनामल जो है वो घिसता है। कई पेशेंट्स आते हैं ना हमारे पास, हमें सेंसिटिविटी हो रही है, हमारे दांत घिस रहे हैं, दैट मीन्स एट्रीजन हो रहा है, विद एज एट्रीजन होता है, तो उसकी वजह से हमारे दांत की जो कोरोनल हाइट होती है या फिर जो क्राउन हाइट होती है वो रिड्यूस हो जाती है। दैट मीन्स हमारा टूथ इज गोइंग डाउनवर्ड्स, बट उसकी जो क्राउन का स्ट्रक्चर है या टूथ का स्ट्रक्चर इट इज़ मेंटेन्ड बाय रेगुलर डिपोजिशन ऑफ सीमेंटम इन द अपाइकल थर्ड, जो उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं। ऑल्सो एक सुपरफिशियल लेयर होती है सीमेंटम की जो कि ऑलमोस्ट न्यू लेयर ऑफ सीमेंटम मस्ट बी डिपॉजिटेड टू कीप द अटैचमेंट अपैरेटस इंटैक्ट। अब क्योंकि रेगुलर वियर एंड टियर हो रहा है, एट्रीजन हो रहा है, तो हमारे इट इज़ ऑलवेज आर टूथ इज़ प्रोन टू एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा। कभी मैस्टिकेटरी ट्रॉमा है, कभी
वेयर एंड टीयर है, कभी इंसल्ट्स हैं लाइक फिजिकल और केमिकल इंसल्ट्स, तो हमारे टूथ को हमेशा कोई ना कोई ट्रॉमा मिल रहा है, तो उसकी फाइबर्स आर ऑलवेज अंडर ट्रॉमा। तो उसको मेंटेन रखने के लिए सीमेंटम के हमेशा न्यू लेयर्स डिपॉजिट होती रहती हैं, जिसकी वजह से बोन एंड सीमेंटम के बीच में जो फाइबर्स होते हैं दे आर स्ट्रांगली अडेप्टेड टू ईच अदर एंड इट कीप्स द टूथ प्रॉपरली एंकर्ड इन द टूथ सॉकेट। नेक्स्ट वी हैव इज द रिपेयर। Damage to roots such as fractures and resorption can be repaired by the deposition of new cementum. Cementum formed during repair resembles cellular cementum because it forms faster. Also, repair takes place slowly. It cannot be differentiated from the primary cementum. अब रिपेयर क्या हो रहा है, अगर कोई भी फ्रैक्चर हो गया या फिर ड्यू टू सम डिजीज़, रिजॉर्प्शन हमने पढ़ा रेजिस्टेंट होते हैं, बट डिजीज कंडीशंस में रिजॉर्प्शन कैन अकर। तो अगर इफ़ एट ऑल देयर इज़ एनी फ्रैक्चर और रिजॉर्प्शन तो उसका रिपेयर हो जाता है ईजिली, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, सीमेंटम कंटिन्यूसली डिपॉजिट होता रहता है, कंटिन्यूसली फॉर्म होता रहता है। अब जो सीमेंटम फॉर्म होता है ये हमारा सेलुलर सीमेंटम होता है, बिकॉज ए सेलुलर सीमेंटम का फॉर्मेशन इज़ वेरी स्लो बट सेलुलर सीमेंटम का फॉर्मेशन इज़ वेरी फास्ट। दोनों में डिफरेंस हम आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे। एज ऑफ नाउ यू अंडरस्टैंड दैट ए सेलुलर स्लोली बनता है इसलिए वो डिपॉजिट नहीं हो पाता, बट सेलुलर सीमेंटम फॉर्म्स वेरी फास्ट, तो वो जल्दी जल्दी डिपॉजिट होता है एंड इट हेल्प्स इन रिपेयर। ऑल्सो जब ये सेलुलर सीमेंटम बनता है, हमें पता है सेलुलर सीमेंटम सेकेंडरी सीमेंटम होता है, बट क्योंकि वो डिपॉजिट हो रहा है रेगुलरली इसको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है बिटवीन द प्राइमरी सीमेंटम एंड द सेकेंडरी सीमेंटम। Last we have its function is hypersensitivity prevention. Now hypersensitivity prevention का क्या मतलब है, सीमेंटम जो होता है वो कवर करता है डेंटिनल ट्यूब्यूल्स को ऑफ द रूट पोर्शन ऑफ द टूथ और प्रिवेंट करता है हाइपरसेंसिटिविटी को। क्या क्या लेयर्स होती हैं हमारी, क्राउन में इनामल और डेंटिन, रूट में क्या होती है, सीमेंटम और डेंटिन। अब अगर सीमेंटम हट जाएगा तो डेंटिन एक्सपोज हो जाएगा, जिसकी वजह से डेंटिनल ट्यूब्यूल्स ओपन हो जाएंगे एंड हेंस क्योंकि हमने पढ़ा है इसमें मूवमेंट होता है फ्लूइड्स का, जिसकी वजह से हाइपरसेंसिटिविटी मिलती है पेशेंट को, मतलब पेशेंट को ठंडा गर्म लगता है। तो अगर सीमेंटम का डिपोजिशन होता रहेगा तो डेंटिनल ट्यूब्यूल्स हमेशा सीमेंटम से कवर्ड रहेंगे एंड पेशेंट को हाइपरसेंसिटिविटी नहीं होगी। नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं सीमेंटॉइड टिश्यू पे। सीमेंटॉइड टिश्यू एक टर्म है जो कि फॉर्म्ड होता है आफ्टर सम सीमेंटम मैट्रिक्स हैज़ लेड डाउन इट्स मिनरलाइजेशन बिगिन। तो जो अनकैल्सिफाइड मैट्रिक्स होता है उसको हम सीमेंटॉइड कहते हैं। दिस सीमेंटॉइड टिश्यू इज लाइन्ड बाय सीमेंटोब्लास्ट। अब इसका क्या मतलब है, हमारा सीमेंटम का मैट्रिक्स हमने ले डाउन हो गया है हमारे टूथ में, अब उसका मिनरलाइजेशन स्टार्ट हो रहा है। मिनरलाइज होने के टाइम जो पार्ट अनकैल्सिफाइड रह गए, दैट मीन जिसका मिनरलाइजेशन नहीं हुआ है, जो मैच्योर नहीं हुआ है, उसको हम सीमेंटॉइड टिश्यू कहते हैं। अब क्योंकि ये रॉ है, अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है, दिस इज़ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ सीमेंटम फॉर्मेशन, तो उसके आसपास हमें क्या मिलेगा, सीमेंटोब्लास्ट, जो कि सीमेंटम फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। ये सेल्स होते हैं जो कि सीमेंटम को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। इज इट क्लियर? ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा था कि पेरिडोन्शियम में हमारे पास दो हार्ड टिश्यूज़ होते हैं, सीमेंटम एंड एल्वेलर बोन। तो दोनों ही हार्ड टिश्यूज़ है तो इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होंगी, कुछ डिफरेंसेस भी होंगी। अभी तक हमने पिछले स्लाइड्स में एक ही डिफरेंस पढ़ा है, आप लोग मुझे बता सकते हो, मे बी आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ टू कंटिन्यू द टॉपिक, एक मेन डिफरेंस जो हमने पीछे की स्लाइड्स में पढ़ा था, दैट इज़ बोन का रिजॉर्प्शन होता है, सीमेंटम का रिजॉर्प्शन नहीं होता है। सीमेंटम इज रेजिस्टेंट टू रिजॉर्प्शन, हाउएवर एल्वेलर बोन अंडरगोज रिजॉर्प्शन। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है BDS स्टूडेंट्स के लिए भी एज वेल एज PG स्टूडेंट्स के लिए भी, कि सीमेंटम और एल्वेलर बोन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। पहली मेन सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही क्योंकि हार्ड टिश्यू हैं इसलिए इनका ऑर्गेनिक फाइब्रस नेटवर्क सिमिलर है, ग्राउंड सब्सटेंस सिमिलर है, क्रिस्टल टाइप सिमिलर है, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस, रीऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज़ एंड केमिकल कॉम्पोजिशन सिमिलर है, बिकॉज बोथ कॉन्स्टिट्यूट दी हार्ड टिश्यू। ये चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी कि सिमिलैरिटी इज बोथ आर हार्ड टिश्यूज़, इसलिए इनका कॉम्पोजिशन, इनका ऑर्गेनाइजेशन, इनका फंक्शन आर सिमिलर। और क्या सिमिलैरिटी है इसमें कि जो डिजीजेज बोन को अफेक्ट करती है वही डिजीजेज सीमेंटम को भी अफेक्ट करेंगी। जैसे
पेजेस डिसीज बोन की डिसीज है, बट इट ऑल्सो हैज़ इफेक्ट ऑन सीमेंटम, दैट इज हाइपरसीमेंटोसिस। पेजेस डिसीज में बोन ज़्यादा बनती है, सिमिलरली पेजेस डिसीज में सीमेंटम भी ज़्यादा बनेगा। हाइपोफॉस्फेटेजिया, ये भी एल्वुलर बोन की प्रॉब्लम है जिसमें बोन्स आपकी वीक हो जाती हैं। सिमिलरली इसमें आपका सीमेंटम फॉर्म ही नहीं होगा, अगेन दिस इज अफेक्टिंग सीमेंटम। सिमिलरली हाइपोपिट्यूटरिज्म, डिफेक्टिव सीमेंटम फॉर्मेशन इज ऑल्सो सीन एज क्लीडोक्रेनियल डिस्प्लेसिया। सो ये जितनी भी डिसीजेज मैंने लिस्ट करी है दैट इज पेजेस डिसीज, हाइपोफॉस्फेटेजिया, हाइपोपिट्यूटरिज्म, ये जो हमने पेजेस डिसीज, हाइपोफॉस्फेटेजिया, हाइपोपिट्यूटरिज्म एंड डिफेक्टिव सीमेंटम, ये जो 4 डिसीज है दीज आर मेनली डिजीजेज ऑफ बोन, बट ये अफेक्ट किसको भी करती हैं, दीज ऑल्सो अफेक्ट दी सीमेंटम and hence this forms a similarity between cementum and alveolar bone. Next अब हम पढ़ेंगे differences. मेन डिफरेंस हमने क्या पढ़ा था, रिजॉर्प्शन, कि बोन का रिजॉर्प्शन होता है बट सीमेंटम का रिजॉर्प्शन नहीं होता है। फर्स्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस क्या पढ़ा था हमने, अब हम देखते हैं, दैट इज सीमेंटम के अंदर टाइप 1 एंड टाइप 3 कोलैजन होता है, बट बोन के अंदर ओनली टाइप 1 कोलैजन है। सो दिस इज द डिफरेंस इन इट्स कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट डिफरेंस इन द कॉम्पोजिशन इज सीमेंटम के अंदर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स 46% होते हैं, बट एल्वुलर बोन में इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स ज़्यादा होते हैं, दैट इज 70% होते हैं। पीछे हमने पढ़ा था कि देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट इन द परमेबिलिटी। वी कैन ऑन अ लार्जर बेसिस हम कह सकते हैं कि सीमेंटम इज रिलेटिवली परमिएबल एंड बोन वी नो कि बोन इज कम्प्लीटली इम्परमिएबल। बोन में हम किसी भी चीज़ का एक्सचेंज एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, बट सीमेंटम कैन अलाउ some amount of permeability. Then cementum does not go extensive remodeling, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, बोन के अंदर रिमॉडलिंग होती है। सीमेंटम के अंदर नॉन कोलैजिनस प्रोटीन्स एज कम्पेयर टू बोन ज़्यादा होते हैं एंड बोन में नॉन कोलैजिनस प्रोटीन्स कम होते हैं। तो अगर हम समराइज करें तो सीमेंटम में सिमिलैरिटी इज देयर मेनली देयर नेटवर्क, देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर क्रिस्टल टाइप एंड डिजीजेज दोनों को अफेक्ट करती हैं। वेराज डिफरेंसेस रीमॉडलिंग में है, कोलैजन कंटेंट में है, नॉन कोलैजिनस प्रोटीन्स में है, परमेबिलिटी में है एंड रीमॉडलिंग में। गुड टू गो विद द डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन सीमेंटम एंड एल्वुलर। अब हम आगे चलते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ सीमेंटम। अगर सीमेंटम पे क्वेश्चन आ रहा है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें ऑन विच यू कैन नॉट स्किप, ये मैं आपको लास्ट स्लाइड में बताऊंगी। आई होप यू विल क्विकली मेक अ नोट ऑफ इट। So first is one of the most important things in those list will be types of cementum, आपको mention करना ही पड़ेगा। That is first is according to Gottlieb 2 टाइप का cementum होता है, ए सेलुलर cementum, that is इसको हम प्राइमरी cementum भी बोल सकते हैं क्योंकि पहले बनता है, that is why प्राइमरी cementum। Then सेलुलर cementum, सेकेंडरी cementum भी कहते हैं क्योंकि ये बाद में बनता है, पहले बन रहा है तो ए सेलुलर है, प्राइमरी है, बाद में बन रहा है तो सेकेंडरी है या फिर सेलुलर cementum। PGs, you have to keep in mind that you will have to mention the author as well as the year. Next we have according to Schroeder 1986, 1991, again a note of mention for perio-PGs. इसमें 4 parts होते हैं, acellular, afibrillar cementum, acellular extrinsic fiber cementum, cellular intrinsic fiber cementum and cellular stratified mixed cementum. We will be discussing each type of cementum in further slides. As of now, you can just list them. Now we'll be talking about the classification of cementum. Cementum को हम बहुत तरीके से classify कर सकते हैं. First we have is based on location. 2 टाइप के होते हैं, radicular and coronal cementum. Based on the origin of collagen fibrils, it is intrinsic and extrinsic fibers. Then according to cellularity, acellular, cellular cementum. Based on time of origin, primary and secondary cementum. And based on presence of collagen fibrils, afibrillar and fibrillar cementum. Afibrillar as the term says, इसके अंदर fibers absent होते हैं and इनमें fibers कौन से absent होते हैं, collagen fibers absent होते हैं और ये बहुत ही rarely हमें मिलते हैं। जो fibrillar cementum होते हैं इसके अंदर
डेंसली पैक्ड कोलेजन फाइब्रिल्स होते हैं इसके मैट्रिक्स में, जो कि इसके टर्म को ही जस्टिफाई कर रहा है, दैट इज फाइब्रिलर. फाइबर्स आर प्रेजेंट, दैट इज कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट. Afibrillar, that is a fiber, that is no fibers are present, that is absence of collagen fibers. अब हम पढ़ते हैं एसेलुलर सीमेंटम के बारे में. व्हाट इज एसेलुलर सीमेंटम? एसेलुलर सीमेंटम फर्स्ट लेयर ऑफ सीमेंटम होती है जो कि डिपॉजिटेड होती है और कवर करती है अप्रॉक्सीमेटली सर्वाइकल थर्ड और हाफ ऑफ द रूट. तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारी रूट है. तो एसेलुलर सीमेंटम है. सर्वाइकल थर्ड हमारा ये हो गया, दिस इज अ सर्वाइकल थर्ड. लेट मी शो यू. दिस इज आवर सर्वाइकल थर्ड and this is the cellular cementum which is lining the root surface, as you can clearly demarcate कि this is the acellular cementum. हमने तो आप क्या याद रखोगे acellular cementum में कि ये फर्स्ट लेयर ऑफ सीमेंटम है जो कि डिपॉजिट होता है और कवर करता है अप्रॉक्सीमेटली सर्वाइकल थर्ड और हाफ ऑफ द रूट सरफेस. इट इज़ फॉर्म बिफोर द टूथ रीचेज द ऑक्लूजल प्लेन. तो आप ये वाली लाइन देख सकते हैं. आई होप दिस इज कंसिडर्ड टू बी द ऑक्लूजल प्लेन. सो ऑक्लूजन प्लेन में ऊपर आने से पहले से एसेलुलर सीमेंटम का फॉर्मेशन होता है. एसेलुलर मतलब ए सेल्स, दैट मीन्स नो सेल्स, इसके अंदर कोई भी सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. एंड इसकी थिकनेस कितनी होती है? टू कीप इन माइंड इसकी थिकनेस होती है हमारी 30 to 230 माइक्रोमीटर्स. ये आगे की स्लाइड्स में आई हैव मेंशन्ड इट क्लियरली. ओके फाइन. नेक्स्ट वी हैव इज दी, नाउ दिस इज द हिस्टोलॉजिकल पिक्चर ऑफ एसेलुलर सीमेंटम. हम इसमें देख सकते हैं ए सेलुलर है, दैट मीन्स इसके अंदर सेल्स नहीं है, बट इट कैन हैव अदर थिंग्स. लाइक इस इमेज में हम देख सकते हैं वी हैव इंटरमिगलिंग ऑफ फाइबर्स. दिस कैन बी सीन, दिस कैन बी वेरी वेल अप्रिशिएटेड विद दिस. ओके, एंड these are the okay. In the second part also, B part, we also see these intermingling of fibers. This is all intermingling of fibers which I am highlighting. Then see, it is the final connection between the fibers and the dentine. You can see the part I am highlighting. This is your dentine. These are your intermingling of fibers. FF is fibrous fringe. I will be talking it in further slides. And here in D, we can see that fibrous fringe is extending. This, can you see this? Fibrous fringe extending from cementum, and this is the DCJ, that is dentinocementum junction. And this is what the histological diagram shows. Next, we'll be talking about the cellular cementum. What is cellular cementum? जिसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो सेलुलर सीमेंटम है. इसको हम सेकेंडरी सीमेंटम भी बोलते हैं, आज हमने पिछले वाली स्लाइड्स में पढ़ा था. और ये ए सेलुलर सीमेंटम के बाद बनता है. तो हमारा सीमेंटम फॉर्मेशन कैसे होता है? पहले ए सेलुलर सीमेंटम बनेगा, उसके बाद सेलुलर सीमेंटम बनेगा. ए सेलुलर में सेल्स नहीं होते हैं, सेलुलर में सेल्स होते हैं. ये कब बनता है? जब हमारा टूथ ऑक्लूजन प्लेन से ऊपर आ जाता है. तो हम इसको कैसे देख सकते हैं? दिस इज़ योर ऑक्लूजन प्लेन. अब आपका जो टूथ है वो ऑक्लूजन प्लेन के ऊपर इरप्ट हो चुका है. एंड नाउ जो रूट के ऊपर सीमेंटम का डिपोजिशन होगा, जो अब रूट का डिपोजिशन होगा, दैट विल बी सेलुलर सीमेंटम और द सेकेंडरी सीमेंटम. ऑक्लूजन प्लेन के ऊपर, ऑक्लूजन प्लेन के नीचे भर, जब तक आपका टूथ इज बिलो द ऑक्लूजन प्लेन, तब तक जो सीमेंटम डिपॉजिट होगा दैट इज द ए सेलुलर सीमेंटम. जो सेलुलर सीमेंटम होता है इट इज़ मोर इरेगुलर. इसके अंदर सेल्स होते हैं, दैट इज सीमेंटोसाइट्स इन लैक्यूने, जो कम्युनिकेट करेंगे थ्रू द एनास्टोमोसाइजिंग कैनालिक्यूलम.
इन सब टर्म्स को आप ज़्यादा पैनिक नहीं करो. विल बी टॉकिंग अबाउट ईच टर्म इन डिटेल इन द फर्दर स्लाइड्स. इसमें हम देख लेते हैं. वी कैन सी, कैन यू सी दिस सेल्स? ये हमारे सेलुलर सीमेंटम होता है क्योंकि इसमें हमें सेल्स विजिबल है. ये लैक्यूने में प्रेजेंट है, दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड सीमेंटोसाइट्स. ओके, मूविंग अहेड, लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द ए सेलुलर एंड द सेलुलर सीमेंटम. बहुत सारे डिफरेंसेस मैं आपको बताती आ रही हूँ. लेट्स जस्ट गो थ्रू. ए सेलुलर सीमेंटम में वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ एम्बेडेड सीमेंटोसाइट्स. हाउएवर यहाँ पे हमें एम्बेडेड सीमेंटोसाइट्स मिलेंगे. मैंने पहले ही कहा था ए सेलुलर सीमेंटम में इसके अंदर कोई सेल्स वगैरह नहीं है, तो इनका डिपोजिशन इज़ वेरी स्लो. सेलुलर सीमेंटम डिपोजिशन वेरी फास्ट है. इसलिए जब हमारा रिपेयर होता है तो कौन सा सीमेंटम बनता है? आई थिंक यू गाइज नो द आंसर. इट इज़ सेलुलर सीमेंटम. हमने पढ़ लिया ए सेलुलर सीमेंटम फर्स्ट फॉर्म लेयर है, सेलुलर सीमेंटम आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ए सेलुलर सीमेंटम होती है. क्योंकि ए सेलुलर सीमेंटम एक बार बन गया, अब वो बार बार नहीं बन रहा है, तो उसकी विड्थ रिमेन्स कांस्टेंट, मोर और लेस सेम रहती है. क्योंकि उसके ऊपर ना डिपोजिशन हो रहा है ना रिजॉर्प्शन हो रहा है. रिजॉर्प्शन होता नहीं है, डिपोजिशन हो नहीं रहा है, तो उसकी विड्थ में चेंजेस ही नहीं आ रहे, तो वो कांस्टेंट रहती है. सिमिलरली विड्थ ऑफ सेलुलर सीमेंटम हाईली वेरिएबल, क्योंकि विद रिपेयर इट इज़ ऑलवेज बीइंग डिपॉजिटेड, हमेशा एक्यूमुलेशन हो रहा है. नेक्स्ट जो ये सेलुलर सीमेंटम होता है, इट इज फाउंड मोर एट द सर्वाइकल थर्ड. हमने पढ़ा ही था पीछे डायग्राम में. एंड सेलुलर सीमेंटम की लोकेशन आई कुड नॉट मेंशन अर्लियर, so it is mainly seen at the apical third and interradicular area through a thin layer that is present all over the root. apical third में मिलेगा क्योंकि cervical और half of the tooth तक तो हमारा ए सेलुलर है, उसके नीचे कौन सा है हमारा सेलुलर सीमेंटम. हमने पढ़ा था इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्राइमरी सीमेंटम, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी सीमेंटम. शार्पीज फाइबर आर वेल मिनरलाइज्ड. यहाँ पे दीज आर पार्शियली मिनरलाइज्ड, क्योंकि मिनरलाइजेशन होता रहता है, डिपोजिशन चलता रहता है. इंक्रीमेंटल लाइन्स आर रेगुलर एंड आर क्लोजली प्लेस्ड. यहाँ पे इंक्रीमेंटल लाइन्स आर इरेगुलर एंड प्लेस्ड वाइड अपार्ट विद वेरिएबल थिकनेस बिटवीन देम. तो इंक्रीमेंटल लाइन्स यहाँ पे रेगुलरली प्लेस्ड, क्योंकि वो बन गया, दैट इज एस्टैब्लिश्ड फॉर्म ऑफ सीमेंटम. ये रेगुलरली बन रहा है, तो इसमें चेंजेस हमें मिलते रहेंगे. तो ये इंक्रीमेंटल लाइन्स इसमें इरेगुलर होती हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अलग जुड़ी हुई, अलग अलग, दिस आर वाइडली प्लेस्ड. नेक्स्ट हमने शॉर्डर की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, जिसमें हमने 4 टाइप का सीमेंटम देखा था. ए सेलुलर, ए फाइब्रिलर, ए सेलुलर एक्सट्रिंसिक फाइबर, सेलुलर मिक्स्ड स्ट्रैटिफाइड, सेलुलर इंट्रिंसिक फाइबर सीमेंटम. इनके बारे में हमें पढ़ना है. हम फर्स्ट पे आते हैं. फर्स्ट इज ए सेलुलर, ए फाइब्रिलर सीमेंटम. इसकी थिकनेस कितनी है? 1 to 15 माइक्रोमीटर्स. क्योंकि ए सेलुलर है, ए फाइब्रिलर है, इसके अंदर हमें फाइबर्स देखने को नहीं मिलेंगे. इसमें हमें सीमेंटोब्लास्ट मिलेंगे, क्योंकि वो सीमेंटम फॉर्मिंग सेल्स हैं, बट इसके अंदर हमें एम्बेडेड सेल्स नहीं मिलेंगे, दैट आर सीमेंटोसाइट्स. तो ओनली दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय सीमेंटोब्लास्ट एंड नॉट, दे डू नॉट कंटेन सीमेंटोसाइट्स और एनी काइंड ऑफ फाइबर्स, क्योंकि ए सेलुलर है, ए फाइब्रिलर. कहाँ पे मिलते हैं हमें? spurs and patches over enamel and dentine along with the CEG, and इनका कोई specific function नहीं है. Next we have is the acellular extrinsic fiber. Again emphasize on the term acellular, मतलब फिर से इसमें हमें embedded cementocytes नहीं मिलेंगे. तो ये किससे बनेंगे? सीमेंटोब्लास्ट से. बट यहाँ पे हमें क्या emphasize करना है कि इनके पास extrinsic fibers है. एक्सट्रिंसिक फाइबर्स हैं, दैट मीन्स दे हैव सर्टेन काइंड ऑफ फाइबर्स. तो ये फाइबर्स कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं? अगेन दीज आर प्रोड्यूस बाय फाइब्रोब्लास्ट. कौन से टाइप के फाइबर्स होते हैं? दीज आर दी एक्सट्रिंसिक फाइबर्स. एक्सट्रिंसिक फाइबर्स का क्या मतलब होता है? एक्सट्रिंसिक फाइबर्स आर द शार्पीज फाइबर्स. तो एक्सट्रिंसिक फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज शार्पीज फाइबर. यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट. Sharpies fibers. जहाँ पे भी extrinsic fibers term यूज होगा, you can directly think it of as sharp. We are talking about Sharpies fiber. Next we have is its location from cervical margin to the apical third, and main काम क्या है इसका? Anchorage. It helps in anchorage.
नेक्स्ट वी हैव इज द सेलुलर मिक्स स्ट्रैटिफाइड सीमेंटम. सेलुलर है दैट मीन्स इसके अंदर सीमेंटोसाइट्स होंगे. मिक्स स्ट्रैटिफाइड है दैट मीन्स मिक्स टाइप के फाइबर्स मिलेंगे. तो सेलुलर फाइब्रोब्लास्ट सीमेंटोब्लास्ट होंगे. सीमेंटोसाइट्स एम्बेडेड होंगे. फाइबर्स में इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फाइबर्स होंगे एंड लोकेटेड कहाँ होते हैं इन द अपाइकल पोर्शन एंड फर्केशन एरियाज एंड मेन फंक्शन इज अडैप्टेशन. लास्ट टाइप ऑफ सीमेंटम इज सेलुलर सीमेंटम. सेलुलर इंट्रिंसिक फाइबर सीमेंटम. इंट्रिंसिक फाइबर्स का मतलब होता है हमारे कोलाजन फाइबर्स. तो जहाँ पे भी हमारा टर्म आएगा इंट्रिंसिक फाइबर, इट इज़ वेल अंडरस्टूड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट कोलाजन फाइबर्स. एंड अगेन सेलुलर है. सीमेंटोब्लास्ट तो सीमेंटम फॉर्मिंग सेल है तो हर किसी में होगा, बट इसमें हमें क्या मिलेगा? एम्बेडेड सीमेंटोसाइट्स. लोकेटेड कहाँ होते हैं? मिडिल एंड अपाइकल थर्ड में, फर्केशन एरियाज में, रिजॉर्प्शन लैक्यूने में. इनका फंक्शन क्या है? अडैप्टेशन एंड रिपेयर. लास्ट टाइप ऑफ सीमेंटम जो हमें पढ़ना है अकॉर्डिंग टू टाइप्स में अगर हम बात करें दैट इज इंटरमीडिएट सीमेंटम. सो इंटरमीडिएट सीमेंटम एक इल डिफाइंड जोन होता है नियर द सीमेंटोडेंटिनल जंक्शन ऑफ सर्टेन टीथ that appears to contain cellular remnants of hers, that with Hertwig's epithelial root sheath embedded in the calcified ground substance. तो बस सिंपल लैंग्वेज में इसको ऐसे याद करना है कि एक फॉर्म ऑफ सेकेंडरी सेलुलर इंट्रिंसिक फाइबर सीमेंटम है जो कि इल डिफाइंड जोन में प्रेजेंट होता है. कुछ टीथ में मिलता है, सारे टीथ में नहीं मिलता है. और कहाँ मिलता है? सीमेंटोडेंटिनल जंक्शन. और ये कहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड होता है? अपेक्स ऑफ द टूथ पे. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन. हम यहीं पे एंड करते हैं जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा. वी टॉक्ड अबाउट व्हाट इज पेरिडोन्शियम, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ पेरिडोन्शियम. फिर हमने एक्सटेंट देखा सीमेंटम का. उसके बाद वी टॉक्ड अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीमेंटम जिसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सारी पढ़ी इंक्लूसिव ऑफ सीमेंटम थिकनेस. फंक्शंस ऑफ सीमेंटम पढ़ा. Then we talked about the cementoid tissue, similarity and differences between the cementum and alveolar bone. Then we move on to types of cementum and ended with classification of cementum, where we talked about the differentiating table between the acellular and cellular cementum and the differences between the 4 types of cementum given by Schroeder. तो अगर आपके पास सीमेंटम का क्वेश्चन आता है, थिंग्स यू कैन नॉट मिस आउट ऑन आर. फर्स्ट इज डेफिनेशन. देन यू विल हैव टू टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंटम ब्रीफली इफ यू आर अ यूजी स्टूडेंट. देन यू विल बी टॉकिंग अबाउट what are the types of cementum and what are the classification of cementum, and you will have to make those 2 tables of difference between cellular and acellular cementum and the Schroeder's classification of cementum, that differentiating table which I have explained you. I hope today's lecture was worthy for you and आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा. And if you have any doubts, any queries, please comment in the comment box. Thank you. Bye bye. And also I'll be continuing the next part of the topic in the further videos. Bye.